स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल पर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा और कि मैं आपका ऑनलाइन डेमो करा सकूं। आज हमने पीआरटी म्यूजिक का ऑनलाइन डेमो कर लिया है। आज मैं एसएसटी का, सोशल स्टडीज़ का डेमो करूंगा और हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट जुड़े हैं जो सेलेक्टेड हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले कैंडिडेट है हमारे साथ साक्षी। साक्षी, अपना माइक ऑन करिए। यस सर। सबसे पहले साक्षी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना यस इंट्रोडक्शन सर। दीजिए कि गुड आप मॉर्निंग। कहाँ से बिलोंग करती हैं। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए, वैसे इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Okay, thank you, sir. थोड़ा Good इसका afternoon, sir. So my name is Sakshi Gupta. So I come from Maharajganj district of Uttar Pradesh, and basically I am living in Prayagraj. Coming to my educational qualifications, I have done my schooling from Maharajganj itself, and then I have completed my graduation in BA from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. And then with that, I was also preparing for the entrance examinations of BHU BEd. And then I've qualified the entrance examination of BHU BEd. And I pursued my BA from Banaras University uh, in from 2020 to 2022. And coming to my qualities, I'm a person calm in nature, positive in attitude, and I can deal the situation with this different perspectives. And I can also adjust in different situations. And my hobbies are dancing and traveling. Thank you, sir. Okay, Sakshi, you have mentioned that you have done your B.Ed from Banaras Hindu University. Yes, sir. What is the Kulgeet of Banaras Hindu University and who is the creator of this Kulgeet? Sorry, sir. I'm not aware of this. Okay. Uh, BHU was established in which year? Sir, BHU was established in 1916 by Pandit Madan Mohan Malviya, who was a prominent leader and Okay. also a four-time president of Congress, Indian National Congress. Okay. Sakshi, what is the meaning of Sakshi? So the meaning of Sakshi is witness that uh, to means to be truth for someone or to be witness for someone. Okay. You have mentioned that your hobbies are dancing and Traveling, sir. traveling. Which Yes. place you have traveled last? So as my home district is Maharajganj and it is bounded with Nepal. Hmm. So I've traveled in Nepal and in Lumbini. I've traveled to Lumbini. Lumbini. Yes, sir. Okay. Lumbini is famous for what? So Lumbini is famous for the birthplace of Lord Buddha. Lumbini is famous for It is the birthplace of Lord Buddha. Lord Buddha. Okay. Yes. What was the teaching of Lord Buddha? And you are going to appear in the interview of social studies, TGT social studies. So, Yes, sir. what were the teachings of Lord Buddha? So his teaching was that a person should be truthful, and he also taught us about tolerance. And his famous quote is that uh, uh, desire is the cause of sorrow, which influenced me a lot. उनके चार आर्य सत्य क्या थे? Uh, Sir, I'm unable to recall Satya Ahimsa, and नहीं. sorry, sir, I'm unable to recall this. Okay, coming to your second hobby, your hobby is dancing. Which type Yes, of sir. dance you do? Folk or Well, classical?
So usually I do folk dance. हाँ, So folk dance. फोक डांस. Yes, sir. ओके. So usually I was active in during school times in dancing, and usually I do dance on patriotic song. On patriotic song. Yes. You have mentioned that you are fond of folk dance. What is the name of, give the name of some folk dance of Uttar Pradesh because you belong to Uttar Pradesh. Yes, sir. So the I know the two one which is one of is Ras Leela, Okay. and one is a Nautanki, which is famous in Uttar Pradesh. Okay. So the topic you have prepared for your teaching, that is So I have prepared the sectors of economy. sectors of economy. Yes, sir. Okay, just go for the introductory questions of the sectors of economy. Okay, so oh, students, uh, the clothes you have wear, where you bought it from? ये जो कपड़े आपने पहने हैं, जैसे ड्रेस आपने पहने हैं, वो आपने कहाँ से लिया? हम्म. बिल्कुल सही, आपने ये गारमेंट शॉप से लिया। अच्छा, ये जो गारमेंट शॉप में आप देखते हो इतने सारे जो क्लोथ्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? हम्म. ओके, ये फैक्ट्री से आते हैं। वेरी गुड। सो इन फैक्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, जिससे ये क्लोथ्स बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं? ओके, वेरी गुड। मीन ये खेत से आते हैं, फील्ड से आते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड। वेरी गुड। ओके, सो इन सबको हम क्या कहते हैं? शॉप, फैक्ट्री, एग्रीकल्चरल फील्ड, इन्हें क्या कहते हैं? यस, हम इन्हें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। वेरी गुड। सो आपको पता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। दैट्स ऑल्सो। हिस्ट्री में क्या प्रिपेयर किया? आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? सो मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सर ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या प्रिपेयर किया है? सर पॉलिटिकल साइंस में मैंने सर रिलीजन जो चैप्टर है वो मैंने। हम्म. सर रिलीजन. मैंने अभी। यस सर। सर मैंने रिलीजन। चलो ठीक है, रिलीजन का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाओ. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन केवल बनाओ, उसके बाद टॉपिक पे आना. ओके सर। सो आप चाहो तो अपना वीडियो ऑन कर सकती हो. सो लक्ष्य आप बताओ। आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो? दिवाली। ओके। एंड फरदीन आप बताओ, आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो? ईद। ओके, वेरी गुड। सो आपको पता है फरदीन, आपको पता है लक्ष्य का रिलीजन क्या है? ये सॉरी सर, आई एम नॉट प्रिपेयर राइट इन। सर आई चलो प्रिपेयर इट लेटर। कोई बात नहीं, ठीक है. लक्ष्मी सो पर सॉरी आती. सर, आई हैव नॉट प्रिपेयर माय डेमो येट, सो आई वाज। इट्स सो के आप ही लोग कह रहे थे कि सर डेमो करा दो, तो मैंने कराया. कोई बात नहीं. लक्ष्मी, आप अपना माइक ऑन करो, मैं अभी फीडबैक दूंगा आपका. लक्ष्मी, आपने क्या प्रिपेयर किया है? तो डेमो नहीं प्रिपेयर किया, बस इंट्रो थोड़ा प्रिपेयर किया. हाँ तो चलो इंट्रोडक्शन से ही शुरू कर लेंगे. इंट्रोडक्शन दो अपना. So my name is Lakshmi Kumari. I am from Patna, Bihar. I have done my B.Ed from Central University of Haryana and my graduation from Patna University. I have done some basic course in computer under Kusal Yuva program, and I always wanted to be a teacher and impart knowledge and guidance to my students. My strengths are I am hardworking and my hobby is traveling. अच्छा लक्ष्मी, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? सर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि जो केवीएस है
वो एजुकेशन पर्पस को भी लेके एक बहुत बड़ा हब है। जैसे कि जो भी मतलब नया कुछ भी आता है तो वो सबसे पहले केवी में ही इम्प्लीमेंट होता है, और वहीं पे मतलब एक तरीके से उसका एजुकेशनल हब है, जिस वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। और ये ऑल ओवर इंडिया में है। तो मुझे ट्रैवलिंग, जैसे मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा इसका है, हॉबी है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इंडिया को और नजदीक से देख सकूं, जो मुझे केवी अपॉर्चुनिटी देगा। अच्छा, आपने बताया कि आप पटना से बिलोंग करती हैं। जी, यस सर। पटना की क्या खासियत है? पटना का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सर जैसे कि पटना जो है वो पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, और जो हम्म, हमारा मगध था, ये पटना हमारा जो एरिया है हम्म, यहाँ आता है। और ये पहली पाटलिपुत्रा जो है वो, जो हमारा मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी भी रह चुकी है। हम्म, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जैसे कि यहाँ पे गोलघर है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था। हम्म। और अशोक से भी ये रिलेटेड है सर। अशोक की जो कुछ रिमेनेंट जो है वो यहाँ से मिली हैं। अशोक का भी ये कैपिटल रह चुका है। तो ये सब पटना की खासियत है। अच्छा। अच्छा, मगध क्या 16 महाजनपदों में से एक था? यस सर। अच्छा, तो क्या मगध सबसे लोकप्रिय था और ताकतवर था? यस सर, बहुत जो मगध था साम्राज्य 16 जनपदों में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। हाँ। और तो इसके क्या रीजन से, रीजन थे इसके? सर इसके रीजन से स्ट्रांग होने के कि सबसे पहले उस टाइम पे जो है, अ, ये एक टाइप से जो नदियों से भी ये घिरा हुआ है हम्म, जो है हमारा। फिर दूसरा रीजन है इसके आसपास जो है बहुत सारी जंगलें हैं, जहाँ से उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए एलिफेंट्स यूज में आते थे, वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल थे। और इसके आसपास जैसे कि झारखंड वाला इलाका हो गया, तो वहाँ पे उस समय आयरन की खोज हो गई थी। हम्म, आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाता था, तो जो भी टूल्स वगैरह बनाने के लिए यूज में आते थे, हम्म। जो भी आयरन का यूज होता था टूल्स बनाने के लिए, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट था 16 महाजनपदों में। अच्छा, आपने हरियाणा से क्या किया है? सर मैंने हरियाणा से बीएड किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा। और आपने वहां से रेगुलर बीएड किया है या फिर ये ऐसे? सर मैंने रेगुलर बीएड किया है, बट कोविड के वजह से जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है वहाँ पे हमें बुलाया नहीं गया था। बट 4 मंथ के लिए हमें, जब कोविड कम हो गई तो हम्म, हमें बुलाया गया था। तो मैंने अच्छा। रेगुलर किया है ये। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा है? सर मैं हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगता है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल? हेलो। हाँ सर, वो सर मुझे थोड़ा मिडिवल इंडिया अच्छा लगता है। मिडिवल इंडिया आपको अच्छा लगता है? अकबर आपको अच्छा लगता है या औरंगजेब? बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए, फिर उन्हीं पर प्रश्न हम पूछें। अच्छा, चलिए, आप मिडिवल इंडिया से रिलेटेड उस समय के सूफीवाद पर कुछ बताइए। सूफीवाद क्लास 7 या 8 में है, थोड़ा सा। सूफीवाद क्या था? सर ये मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सूफीज्म कुछ तो पढ़ा होगा आपने। सूफीज्म क्या था? ये सर जैसे कि हमारा उस टाइम पे मूवमेंट चल रहा था, जैसे कि भक्ति मूवमेंट हो गया। अब तो देखिए, उस आप अपने टाइम, अपने उत्तर से ही एक प्रश्न नया आमंत्रित कर रही हैं कि भक्ति मूवमेंट चल रहा था।
तो भक्ति मूवमेंट क्या था, पहले ये बताइए आप। भक्ति आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका विस्तार कैसे होता है, और भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के नाम आप बताएं। तो मुझे इसके बारे में अभी अच्छे से याद नहीं। नहीं है, ठीक। नैनार अलवार कौन थे, ये पता है? यस सर। बताइए। सर जो नैनार थे वो विष्णु को के फॉलोअर्स थे। विष्णु को फॉलो। गलत हो गया। चलिए, आपने भक्ति और सूफी दोनों ही नहीं देखा। अच्छा, और क्या आपने पढ़ा है? देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू में भी आपसे अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपने जो उत्तर दिया, आपने इंट्रोडक्शन से ही सारे सवाल निकलते निकलते आ रहे हैं। यस सर। आपके इंट्रोडक्शन के बाद से ही सारे सवाल धीरे धीरे उसी से निकल रहे हैं। और क्या पढ़ा है भाई? आपने अपना शौक बताया ट्रैवलिंग। चलिए उस पे आते हैं, सिंपल सिंपल प्रश्न पूछते हैं। यस सर। ट्रैवलिंग आपने अंतिम स्थान कौन सा देखा था, या कहाँ कहाँ पर आप घूम चुके हो? सर अभी लास्टली मैंने ऋषिकेश अच्छा। और गई थी। और और सर कहाँ? और मसूरी मैंने विजिट किया था। अच्छा, ऋषिकेश के बारे में बताइए, आप 5 लाइन बताइए, उसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बताइए। वहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, क्या पहाड़ी है कि नहीं है? सर ये जो ऋषिकेश है वो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड जो स्टेट है हमारा उसमें पड़ता है ऋषिकेश। और वहाँ पे जो गंगा है रिवर वो हम्म, बहती। चलिए छोड़िए। और लक्ष्मी, और आपने और क्या तैयार कुछ किया है, कुछ कोई टॉपिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी या सिविक्स का? नो सर अभी तो मैंने नहीं किया। नहीं तैयार किया है? नो सर। ओके, चलिए ठीक है, आप अपना बंद कर लीजिए। हमारे साथ केटी हैं। केटी, अपना माइक ऑन करिए और आपसे हम बात करें। ये आपका नाम क्या है? केटी, आप जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपका नाम क्या है? आप अपना इंटरव्यू देना चाहेंगे ऐसे? बोलिए। विपिन, विपिन, माइक ऑन करिए अपना। भाई, जब आप यहाँ पे इतना डरेंगे, वो भी ये वर्चुअल इंटरव्यू में इतना डरेंगे, तो रियल इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? केटी। सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन है आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कीर्ति अमृता त्रिपाठी है। जरा सा इसको कम करना साउंड। हाँ, एक बार आप फिर से बोलिए, क्या नाम है आपका? कीर्ति अमृता त्रिपाठी। नाम नाम त्रिपाठी तो सुनाई दिया, आप पीछे क्या बोला? कीर्ति अमृता। क्या बोले? कीर्ति। कीर्ति। हाँ, कीर्ति अमृता। कीर्ति अमृता त्रिपाठी। यस सर। ठीक है कीर्ति, हम आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे अभी। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जैसे ही आप गई, एंट्री की आपने, और उसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक, अगर हम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंग्लिश में कहते हैं तो आप इंग्लिश में बोलें। ठीक, हम आपसे कहते हैं कीर्ति अपना परिचय दीजिए। ठीक है, आपका इंटरव्यू शुरू होता है। कीर्ति।
कीर्ति, कहाँ चली गई? हेलो, कीर्ति, चलिए छोड़िए। साक्षी और लक्ष्मी, आपका मैं फीडबैक दे देता हूँ कि आप जैसे तैयार कर रही हैं, तो पहले तो आपको जब इंटरव्यू में अंग्रेजी में बोला जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दें। अगर आपको कहा जाए कि अपना परिचय दीजिए, तो आप अपना हिंदी में परिचय दीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे साक्षी से मैंने पूछा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत के बारे में, तो साक्षी नहीं बता पाई। तो जहाँ पर आपने पढ़ाई की है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसके सराउंडिंग के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अपने नाम का अर्थ, अपने शहर का जो भी उसके सांस्कृतिक, उसकी आर्थिक, उसकी भौगोलिक जो भी उसकी गुणवत्ता है, जो भी उसकी विशेषता है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जिस भी विश्वविद्यालय से आप पढ़े हैं, उस विश्वविद्यालय के बारे में, उस विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में, उसकी खासियत के बारे में, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक आप चूज़ किए थे, जैसे दूसरा टॉपिक आपने रिलीजन चूज़ किया, उसमें आप नहीं बता पाए अच्छे से। पहले टॉपिक को आपने अच्छे से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लिए थे। और क्या टॉपिक था साक्षी आपका पहला वाला? हेलो, So, sectors of economy. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में और अच्छे प्रश्न हो सकते थे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में, क्योंकि जब आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, तो आप और अच्छे क्वेश्चन ला सकते हैं। एग्रीकल्चर बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से आप खाते हैं, कहाँ से ज़मीन से उगाते हैं। अच्छा, वो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तब तक उसको ठोकर लग गई। ऐसे इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाते हुए ठोकर लग गई, फिर उसने कहा कि अच्छा पत्थर आ गया, अब इस पत्थर को मैं और ज़्यादा खुदाई करूँगा, देखूंगा क्या है इसके नीचे। फिर वो खोदने लगा, खोदने लगा, खोदने लगा राहुल, खोदने पर उसको सोना मिल गया। तो ये क्या हो गई? माइनिंग हो गई। एग्रीकल्चर और माइनिंग किस सेक्टर में आ गए? प्राइमरी सेक्टर में। इस तरह से आप चीज़ों को और इंगेजिंग बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो खुद पर खुद इंगेजिंग हो जाएंगे, ठीक है। रिलीजन वाला जो टॉपिक है, उसको आपने शुरू किया अच्छा कि आप कौन सा फेस्टिवल मनाते हो, वो कौन सा फेस्टिवल मनाता है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं लगा। आप चाहें तो ऑन इक्वालिटी क्लास 7 का ले सकते हैं, या फिर ग्लोबलाइजेशन ले सकते हैं कि आपका फ़ोन किस कंपनी का है। ग्लोबलाइजेशन क्लास 10th का है, आपका फ़ोन किस कंपनी का है, आपका जूता किस ब्रांड का है। ऐसे प्रश्न आप निकाल करके पढ़ा सकते हैं। और आपको एक टॉपिक, हाँ बोलो, क्या बोलना है बोलो। सर जैसे हमारा जो मतलब इंटर्नशिप हुआ था, हमारा जो क्लास चला था सर, वो लॉकडाउन में चला था। तो अच्छा, सर ठीक से हमारा उतना मतलब अ, हो नहीं पाया, हमें पढ़ाया नहीं गया। तो सर अगर आप हमें कुछ थोड़ा डेमो के बारे में अगर सर कुछ प्रिपेयर करा देंगे तो सब अच्छा होगा। ऐसा है ना कि डेमो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ये दरअसल सारे सब्जेक्ट की एक कॉमन समस्या है, ठीक है, कि कैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछें। तो मैं इस पर एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे एक वीडियो ले आऊँगा और आपको पूरा बताऊँगा। फिलहाल मेरा ये कहना है, जैसे कोई भी टॉपिक लाने के लिए, कोई भी टॉपिक लाते, जैसे आपको एक एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आपको बगुला के बारे में बताना है, ठीक। संस्कृत का एक विद्यार्थी का डेमो में ले, उन्होंने फ़ोन पे दिया अपना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि बच्चा बताओ पानी कहाँ से पीते हो। तो पानी हम नल से पीते हैं। नल में पानी कहाँ से आता है? नल में पानी पाइप से आता है। पाइप में पानी कहाँ से आता है? तो पाइप में पानी ज़मीन के भीतर से आता है। ज़मीन में पानी भीतर से कहाँ से आता है?
और कहाँ से पानी आता है, तो नदी से पानी आता है। अच्छा, नदी में कौन कौन से जानवर रहते हैं या पक्षी आते हैं, तो मछली रहती है। अच्छा, और क्या रहता है, तो ये रहता है, हंस आता है। और क्या आता है, तो बगुला आता है। तो अच्छा, तो आज हम संस्कृत में बकस से प्रतिकार, उन्होंने जो बोला मुझे तुरंत अभी वो याद आ रहा है, जस्ट 1 घंटे पहले की बात है। तो उनका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये बकस से प्रतिकार संस्कृत का टॉपिक है। तो वो बगुला के बाद आ गया। इतने सवाल पूछे उन्होंने, फिर वो उनका टॉपिक आया। तो स्टेप बाय स्टेप आपके पूरक प्रश्न आते जाएंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों में भी इंटरेस्ट आएगा, और बच्चे क्या जो उस दिन इंटरव्यू लेने वाले रहेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये और ज़्यादा एंगेजिंग बना रहा है। 4-5 प्रश्न के अंदर आपके उत्तर आ जाने चाहिए, ठीक है। रही बात लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी आपका मगध वाला आंसर बड़ा सही रहा, अच्छा रहा, लेकिन आप अपने ही उत्तरों में प्रश्न निकल निकल करके फंसती गई हैं, ठीक है। तो अपने उत्तरों को ऐसे दीजिए कि उस पर जो प्रश्न बने उस पर आप फंसे नहीं, ठीक। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ सर, मैं बोल पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना हॉबी जो ट्रेवलिंग बोला है, हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, क्या मतलब उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, और जैसे कि मैं। आपसे आप कुछ भी हो सकता है। दरअसल देखिए, इंटरव्यू, पहली बात तो ये कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो एक आइडिया है, अनुमान है, ठीक है। आइडिया कभी आइडियल नहीं होता, ठीक। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, और ये जरूरी नहीं कि सत्य हो, पर ये लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, जहाँ जो भी इंटरव्यू प्रिपेयर करने वाले हैं वो ऐसे करके जाते हैं कि अपने जगह के बारे में, जो जगह वो गए घूमने के लिए, उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी लिया। नहीं तो ये नहीं कि आजकल घूमना एक फैशन हो गया है कि सेल्फी लिए, रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए और चल दिए। उस जगह में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, चूंकि आप एसएसटी के टीचर बनने वाले हो, ठीक है। वहाँ का क्या फेमस है, वहाँ का खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ पे भाषा क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी लेनी होगी, चाहे जहाँ की बोलो। अगर आप बोलते हो कि मेरी हॉबी किताब पढ़ना है, तो फिर आपको उस किताब के बारे में, उस लेखक के बारे में, लेखक ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं इसके बारे में, उनकी फिलॉसफी क्या रही है लेखक की, जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है उस समय इंटरव्यू में, लेकिन अब इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौर में आपको ये जानकारी इकट्ठी करनी होगी, ठीक है। यस सर। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी हॉबी कुकिंग करना है। हॉबी कुकिंग करना नहीं होती है। लड़के अगर कहे कि मेरी हॉबी कुकिंग करना है, तो ये थोड़ा लगता है कि हाँ लड़के नहीं करते हैं, एक जो सोसाइटी का स्टिग्मा है, जो पूर्वाग्रह है, उस हिसाब से। लेकिन आजकल कुकिंग में सबको अपने खाने पीने के लिए, सबको एक कुकिंग अप एक स्किल हो गया है, और एक अनिवार्यता हो गई है कि आपको खाना बनाना है, खाना है, तो सब आ रहा है। और कुछ प्रश्न आपको आ रहे हैं दिमाग में? और खासकर जब आप मेडिवल हिस्ट्री बोल रही हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री से आपको मेडिवल हिस्ट्री के राइटर जिस पर आपने किताबें पढ़ी हैं, ठीक, हिस्ट्रियोग्राफी, इतिहास लेखन, उसका लेखकों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। अभी तो फिर और तो ज्यादा कुछ मेरा नहीं। मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ और ऐड ऑन करना है या फिर कुछ इम्प्रूव करना है सर? नहीं, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है, दोनों लोग का इंट्रोडक्शन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इंट्रोडक्शन पर ही आप दोनों के मैंने क्वेश्चन जनरेट किए हैं, तो जो इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं उसका ध्यान आपको रखना है कि क्या क्या इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप रोज रोज तो नहीं ऐसा डेमो हो पाएगा, लेकिन एक डेमो करने के बाद आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि खुद को इंटरव्यूअर मान के खुद का इंटरव्यू लीजिएगा, इस पे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर उसका आंसर लिखिए और फिर उसको तैयार करिए। कीर्ति, अगर आप अपना डेमो इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप दें, अदरवाइज हम लोग और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक। 2-4 लोग बाहर हैं, 2-4 लोग बाजार में हैं, जो रोज़ मुझे कहा करते थे कि सर प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ इंटरव्यू ले लीजिए, फिर अब शायद ही हो पाए। कीर्ति, आप देना चाहेंगी?
सर डेमो का मैं पूछ रही थी कि जो हम डेमो के लिए प्रिपेयर करेंगे जो भी टॉपिक, तो उस पे हमारी कमांड कैसी होनी चाहिए, और जैसे कि अगर हम आपको अपना डेमो सेंड करें वीडियो के थ्रू, तो आप उस पे अगर हमसे क्वेश्चन बिल्कुल आप सेंड कर पूछे। दीजिएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मतलब टाइम निकाल कर मैं देख लूँगा और फिर उस पर मैं कमेंट करूँगा, उसके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। केटी, जी कीर्ति, सर। जी। आप तैयार हैं? जी सर, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है, अपना परिचय हिंदी में दीजिए। सर मेरा नाम कीर्ति अमृता त्रिपाठी है। मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है विभिन्न राज्यों में, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे। और मैंने 12th क्लास में अपने स्कूल में टॉप किया था, जिसके लिए मुझे मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला। अच्छा, और और मैंने 2 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के तौर पर केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ लखनऊ में काम किया है। हम्म, और अभी मैंने इसी वर्ष जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो है एनबीएस में इंटरव्यू दिया है। और इसके पहले मैं डीएसएसबी में भी, डी ट्रिपल एसबी में भी अपीयर हुई थी, बट वहां पे 2.5 मार्जिन से मैं सक्सेसफुल नहीं रही थी। और मेरी हॉबी है गार्डनिंग करना, पर्टिकुलरली टेरेस गार्डनिंग एंड इंडोर गार्डनिंग। और मुझे हिंदी की कहानियां पढ़ना भी पसंद है। हो गया। यस सर। सबसे पहले कि कीर्ति अमृता त्रिपाठी, आप ये बताइए कि आपके नाम में दो नाम क्यों हैं? सर एक्चुअली ये जो है दो नामों की जो है संधि करके जो है ये एक शब्द बनाया गया है। अच्छा, क्या? सर संधि करके ये शब्द बना है, कीर्ति और अमृता जोड़ के बना है कीर्ति हाँ, अमृता, जिसमें अयादी संधि है। और हाँ, इसका अर्थ बनता है कीर्ति जो अमृत है, या फिर ऐसा फेम जो कि इमोर्टल है। अच्छा। कीर्ति तो हमेशा इमोर्टल ही होती है। जी सर। हम्म। जी सर, हो सकता है यही सोच के फिर नाम रख दिया गया हो। आपने कहा कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी रही हैं, वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई है। तो जी आप ये सर। बताइए केंद्रीय विद्यालय संगठन का सूत्र वाक्य क्या है? तत्वम पोषण अपावृणु। तत्वम पोषण अपावृणु। क्या इसका पूरा श्लोक आपको पता है? नहीं सर। ये कहाँ से लिया गया है? सर मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है। आपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है, ठीक है। और आप अयादी संधि भी बता रही हो, इसका मतलब कि आपका संस्कृत में कुछ रुझान रहा होगा। नहीं सर, मैंने स्कूल में 8th क्लास तक पढ़ा था। ठीक ठीक ठीक। तत्वम पोषण अपावृणु का अर्थ भी नहीं पता है आपको? नहीं सर। ठीक है। कीर्ति, आप ये बताइए कि आपने नवोदय विद्यालय का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम दिया है, टीजीटी एसएसटी का दिया है, जी सर। और आप अभी केवी का भी देने आ रही हैं। तो जी सर। अगर आपका नवोदय में हो गया और केवी में भी हो गया, तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? सर सिंस जो है मैं केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी रही हूँ, पहले तो मैं स्टूडेंट के तौर पे ही जुड़ी थी, तब मुझे ऐसे थॉट्स आए थे कि मैं एक टीचर के प्रोफेशन को अपना सकती हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी के लिए सुटेबल रहेगा। लेकिन जब मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल पे तौर पे काम किया, मतलब स्कूल के काफी साल के बाद वहां जाने पे मुझे एक तरीके से मतलब अपने स्कूल की याद भी आई, और फिर मुझे वो इन्वायरमेंट काफी पसंद आया। तो अब मुझे लगता है कि वो एक इमोशनल तौर पे मैं केवी से ही जोड़ना चाहूंगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मेरा केवी में सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो मैं एम कर रही हूँ कि मैं केवी में ही ज्वाइन करूंगी। कीर्ति, वो तो ठीक है, आप केवी से जोड़ना चाहेंगी। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में क्या अंतर पाती हैं? और सर दो 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 गुण ऐसे बताइए जो आपको केंद्रीय विद्यालय की तरफ मोड़ते हैं। माइक ऑफ कर लिया आपने?
हेलो कीर्ति, यस सर, यस सर। माइक ऑफ मत केंद्रीय, कर इंटरव्यू में। हाँ नहीं सर, वो कॉल आ गया था इसलिए अपने आप ऑफ हो हाँ, गया था। फिर सर जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। हेलो, चलिए अब हमारे साथ वर्षा है। वर्षा आप, हेलो वर्षा, सर शैल आई कंटिन्यू? अब आगे मत ऑफ करना इंटरव्यू में, ठीक है? सर वो कॉल आ गई थी तो फिर वो अपने आप ही ऑफ हो गया था। अच्छा चलो, हाँ बताओ। सर मैं ये कह रही थी कि दोनों स्कूल को जो स्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफर करते हैं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है तो बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि फार मतलब रिमोट एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के लिए इम्पार्ट किया गया है। तो यहाँ पे, और जो नवोदय विद्यालय है वो टैलेंटेड बच्चों को जो उनको जो है एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए किया गया है। तो वहां पे है कि एक जो है टेस्ट के जरिए बच्चे आते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जैसे रिमोट एरिया में है और यहाँ पे ट्रांसफर बेसिस पे भी बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे मल्टी कल्चर हमें देखने को मिलता है। एंड दूसरा ये है कि जो नवोदय विद्यालय है वो रेसिडेंशियल है, और केंद्रीय विद्यालय रेसिडेंशियल नहीं है। चलिए ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिए थे? ग्रेजुएशन में मेरा था जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ऑनर्स भी था आपका? नहीं सर। कौन सा सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है? सर अभी तो मैंने हिस्ट्री पढ़ रही थी, एनसीईआरटी। एंड अच्छा, कौन से क्लास की? जियोग्राफी। जी कौन से क्लास की? सर, यही 6, 7, 8, 9। अच्छा, 6, 7, 8 और 9। यस सर। 10th का नहीं पढ़ा आपने? सर पहले पढ़ा था एग्जाम के समय, बट अभी रिवाइज नहीं किया है। कोई टॉपिक जो आपको याद हो जिसका आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकाल सकें? सर चलिए ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कीर्ति? सर लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ की क्या खासियत है? सर लखनऊ के एक तो खासियत है, यहाँ पे तहजीब जो पुराने नवाब थे उनके जरिए जो प्रचलित है, एक तहजीब की परंपरा वो प्रचलित है काफी यहाँ की। और दूसरा यहाँ पे अगर हम आर्टिफैक्ट्स में देखें या क्राफ्ट में, तो उसमें जो है चिकन का एक टेक्सटाइल होता है, वो काफी फेमस है। तहजीब क्या होता है? सर तहजीब मतलब व्यवहार का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड, या फिर जो है उसको हम कह सकते हैं तहजीब, या जो कल्चर का एक तरीका, स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, उसको कह सकते हैं। लखनऊ राष्ट्रीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सर उस समय यहाँ पे थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने उनका उनके बेटे थे बिरजिस कादिर, तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने इसको लीड किया था। अच्छा, और आपने 6, 7 का चैप्टर तैयार किया है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। अभी मैं पिछले कैंडिडेट से पूछ रहा था कि सूफीवाद क्या है। लखनऊ से आप जुड़ी हैं, तहजीब की बात करती हैं, तो सूफी की बात बताइए, सूफीवाद क्या है? सर सूफीवाद जो है, इस्लाम जो धर्म था उसमें भी एक, जैसे हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलता है कि जो भक्ति का तरीका था या फिर उसमें एक क्रांतिकारी स्वरूप देखने को मिलता है, उसी तरीके से जो सूफीवाद था वो भी मुस्लिम में एक सुधारवादी आंदोलन की तरह था। और अ, जैसे कि उनका तरीका अलग था, जो पारंपरिक इस्लाम धर्म था उससे कुछ अलग था, जैसे उसमें भक्ति के एलिमेंट्स थे, एंड वो उतने ज्यादा रिजिड नहीं थे। और जैसे उनका ये मानना था कि अगर हमें जो अल्लाह है उनसे जुड़ना है, तो उसके लिए हमें प्रेम का मार्ग अपनाना है।
एंड इसके लिए और इसी तरीके से हमें भक्ति जो संत थे उनसे और जो सूफीवाद था उसमें कुछ हमें सिमिलरिटीज देखने को भी मिलती है। जैसे वो लोग भी ये मानते थे कि हम अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ के योगी वगैरह थे उनकी तरह वो ये मानते थे। और प्रेम का मार्ग अपनाना है ये भी मानते थे। और जैसे कि ठीक है, संगीत जो हमें ठीक भक्ति। ठीक है, ठीक है, आप इसकी फिलॉसफी बता दी आपने, क्या इसका वो है। अब जी इसका सर। सेटअप बताइए आप, सूफीवाद में क्या क्या चीजें थी। सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। सूफीवाद से रिलेटेड आप इसके शब्दावलियों को बताइए, उसके जी सर। शब्दावलियां इससे जुड़े हुई हैं। जी सर, उन वहां पे एक टर्म तो था पीर। पीर का मीन्स था गुरु, जो आपकी सहायता करेगा जो है इस साधना में। जो सूफीवाद का तरीका था भक्ति का, उसमें जो गुरु होते थे उनको पीर कहा जाता था। अच्छा। इसके साथ ही एक समा शब्द था जिसमें यह था कि नृत्य और संगीत का उपयोग करते हुए जैसे कव्वाली होती है तो इसके लिए समा शब्द का यूज किया जाता था। और एक था खानकाह, यानी कि वो जगह जहाँ पे उपासना की जाती थी, उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं हम आश्रम था, उसको खानकाह कहते थे। पीर किसको शिक्षित करता था? सर पीर जो भी उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे या उनके शिष्य होते थे उनको उनको। क्या कहा, शिष्यों को क्या कहा जाता था? सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करिए। विशेषताएं टॉपिक मतलब पॉइंट वाइज आप बताएंगे। सर भक्ति आंदोलन की सबसे पहले हम शुरुआत, अगर उसकी शुरुआत का बैकग्राउंड देखें, उसका जो कारण रहा था, तो उस समय जो प्रचलित थी जो सामाजिक व्यवस्था है वो थोड़ा जो है विषम थी, जहाँ पे लोगों को समानता नहीं प्राप्त थी या उनका ऑपरेशन था। तो इस तरीके और जो है जो उस समय जो भी जिस तरीके की बहसें चल रही थी पुनर्जन्म को लेकर या कर्म को लेकर या असमता को लेकर, तो इस बैकग्राउंड में हमें भक्ति जो आंदोलन था उसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब ये भक्ति थी ये अलग अलग हमें क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो वहां पे हमें कई रीजनल जो मतलब क्षेत्रीय देवी देवता थे उनका इमर्जेंस भी देखने को मिलता है। और जो क्षेत्रीय कल्चर थे उनका जो है हमें जो मुख्य धारा का हिंदू धर्म था उससे भी जुड़ने को देखने को मिलता है। जैसे जगन्नाथ संप्रदाय है पुरी में, तो पहले जगन्नाथ जो है ये एक लोकल देवता होते थे, डीटी, लेकिन इनको बाद में विष्णु से जोड़ दिया गया जो हिंदू धर्म में मुख्य थे। और इसके अंदर सबसे बेसिक था कि जैसे इसके बैकग्राउंड जिसमें इमरजेंस था तो उसी को हटाने के लिए जो असमता विद्यमान थी कास्ट के बेसिस पे या फिर जेंडर के बेसिस पे उसका विरोध किया गया। और साथ में इसमें यह था कि जो है साधना करने के तरीके पे प्रेम और भक्ति पे बल दिया गया। और इस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भक्ति में प्रेम को, उसके लिए संगीत का यूज किया गया या फिर कविताएं लिखी गई, जैसे कि अलवार और नायानार थे साउथ में। एक अलवार भक्ति भक्तिन जिसको महिला जो थी उनका नाम बताइए। एक अलवार भक्ति संत महिला जो थी उनका नाम क्या था? सर अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है कीर्ति, अगर आप हिस्ट्री हो गया, आप और कोई सिविक्स से भी कुछ तैयार किया आपने? सर हाँ आप पूछ सकते हैं, मैंने भी रिवाइज नहीं किया, पहले का पढ़ा हुआ है सर। मतलब टॉपिक बताइए, मेरे दिमाग में, मैं तो 4 साल 5 साल से मतलब 10th लेवल से छूटा हुआ है, तो आप टॉपिक बताइए, कौन टॉपिक आपको याद आ रहा हो। चलिए आप सर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है। जेंडर वाले पे आते हैं। जेंडर वाला ठीक याद है है, सर। टॉपिक क्लास 8 का है, हाँ सर याद होगा। बताएंगे उस पे कुछ। अगर आपको कह दिया जाए कि जैसे आप सपोज करो कि अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने मन से पढ़ाओ, तब तो आप पढ़ा लोगे कुछ भी। अगर कह दें कि जेंडर वाला टॉपिक क्लास 8 वाला पढ़ाइए, आप फिर कैसे पढ़ाओगे? सर पढ़ाने के लिए तो मुझे इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा, बट तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि अपने मन से पढ़ाओ, और ये भी कहा जा सकता है कि ये टॉपिक पढ़ाओ। फिर सर और ये मैं तैयार करके जाऊंगी मैं कौन? सारे चैप्टर्स को। हाँ और ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका सर अगर जेंडर के टर्म में पॉलिटिकल साइंस में देखें तो एक मुख्य मुद्दा है अभी की
हमारे यहाँ जो है अभी भी जैसे नहीं नहीं, ये सब पंचायत है। जी जी ठीक है। मैं आपका फीडबैक कर देता हूँ, ठीक है। जी सर। जैसे कीर्ति, आप कॉन्टेक्चुअल में पढ़ाई हो तो आपको नॉलेज हो गई है, अच्छा है आपका, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ठीक है। जी सर। सूफी जब आप बता रही हैं तो सूफी का अर्थ क्या होता है, सूफी में कौन कौन सी शब्दावलियाँ आती हैं, पीर का अर्थ क्या है, पीर के शिष्यों को मुर्शिद कहा जाता था, पीर, मुर्शिद, सिलसिला, खानकाह, इन सब शब्दों जी के आप प्रयोग करिए। समा क्या है, जी सर। रक्स रक्स क्या है, ठीक है, बाशरा, बेसरा, ये सारी चीज़ों को आप सिलसिलेवार पढ़ाइए, पूरा सूफीवाद, ठीक। भक्ति ओके। आंदोलन का मैंने विशेषताएं पूछी आपसे, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में आपने अच्छा बताया, पर उसको पॉइंट वाइज करिए उसको, ठीक है। ऐसे गोल गोल घूम जा रहा है आपका, ठीक है। पहला ठीक आप है सर। कहिए कि जैसे असमानता को हटाने पर बल दिया गया, दूसरा भक्ति पर बहुत बल दिया गया, ठीक है। फिर वो लोकल लैंग्वेज पर बल दिया गया, लोकल डेइटीज को मुख्य धारा में शामिल किया गया, ठीक। इस तरह से आप पॉइंट वाइज ले चलिए, आपका जी ठीक ठाक इंटरव्यू, बाकी दोनों लोगों से अच्छा इंटरव्यू है, चूंकि आप पढ़ाती हो इसलिए। दूसरी बात, केंद्रीय विद्यालय संगठन से आप जुड़ी हो तो आप पहले उसके बारे में अच्छे से जानना, क्योंकि आपने कहा कि मैं 12वीं में टॉप की थी। जी सर। हेलो। जी तो जी आप सर, आवाज आ रही है। तत्व भूषण अपावृणु के बारे में, केवीएस के चेयरमैन के बारे में, कमिश्नर के बारे में, केवीएस के बारे में अच्छे से, केवीएस कितनी संख्या में है, ठीक है, विदेशों में कितना है, नया वाला केवीएस अभी कहाँ खुला है, कहाँ खुला है पता है? सर गुजरात में है शायद। कहाँ पे? हाँ, गुजरात में कौन सी जगह पे खुला है, गूगल मत करिए, सर ठीक है। जी उसको आप पता कर लीजिएगा, एक कॉपी पे बकायदा इसको लिख लीजिएगा, ठीक। जी सर। लखनऊ की ऐतिहासिक हेलो, जी जी पोको अपना माइक ऑफ कर लो, पोको जिसका भी मोबाइल है माइक ऑफ कर लीजिए, अभी आप ही के पास आते हैं। लखनऊ की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक, मैं पूछा विशेषता, आप 4 विशेषताओं 5 विशेषताओं में उसको बांट करके बताएंगे, ठीक है। जी सर। जी राजनीतिक तो आपने बताया नहीं, लखनऊ कहाँ की राजधानी है, ठीक, जी सर। ठीक है। जी आपने तहजीब और चिकन दो दो ही नाम लिए आपने, जी सर। ठीक। जी और बाकी अच्छा रहा आपका, आप जो पढ़ाने वाला आदत हो गई है। और हाँ, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो अंतर आपसे पूछा मैंने, तो उसमें नवोदय विद्यालय के टैलेंटेड बच्चों नहीं, रूरल टैलेंटेड बच्चों के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। जी सर ठीक है। और आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? आपका उत्तर अच्छा था कि मैं सेंटिमेंटली जुड़ी हुई हूँ इससे, और चूंकि नवोदय का पहले इंटरव्यू हो गया तो मैंने मैं दे दी। और दूसरी बात कि आपको अपनी सर आपने जो असफलता, अभी बोला ना, वो मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। पोको अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो, जुड़ करके लोग ऑफ करके ऑन करके चले जाते हैं। सर आई एम डूइंग बट इट इज नॉट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस थोड़ा शांत हो जाइए, इनको बता दें, इनको 2 मिनट में खत्म होने वाला है। तो नवोदय विद्यालय रूरल से जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय विद्यालय वाला जो आप बोली हैं कि सेंटिमेंटल है, और क्या बोला कि चूंकि नवोदय पहले आया था इंटरव्यू, इसलिए मैंने सर दे दिया। दूसरी बात कि जी ये सर। डीएसएसबी का आप 2.5 नंबर से या 3 नंबर से जो छूटा, अपनी असफलताओं का जिक्र अपने परिचय में नहीं करना है, ओके। ठीक है सर। अपनी सफलता और अपनी शक्ति का जिक्र करिए, ठीक है। ठीक है सर। आप उन चीजों का जिक्र करिए जिस पर आप प्रश्न चाहते हैं, ठीक है। जी सर। बाकी आपको कोई भी सलाह मशविरा हो तो आप जुड़े रहिए, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए कीर्ति। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, हमारे साथ सुधीर जुड़े हैं। सुधीर, क्या आप चाहते हैं इंट्रोडक्शन देना, कुछ प्रश्न बातचीत करना? सुधीर नहीं। आरती, यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरती।
आपका इंट्रोडक्शन शुरू करें? यस सर, यस सर। ठीक है, आप अपना परिचय हिंदी में दीजिए, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और का अपना परिचय जैसा आप केवी में देंगी। सर मेरा नाम आरती है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी 10th एंड 12th की स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय रायबरेली से हुई है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज से किया है। और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है, जो कि मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने डीएलएड किया है डाइट रायबरेली से, जो कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ का। एंड उसके बाद मैंने बीएड किया है कोविड की पीरियड में, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। और सर अभी मेरे पास वर्तमान में 7th मंथ का एक्सपीरियंस है जवाहर नवोदय विद्यालय में एज ए पीजीटी इकोनॉमिक्स। और तो अभी आप सर पीजीटी एसएसटी में सेलेक्ट हुई हैं? नो सर, एक्चुअली सर मेरा सिलेक्शन पीजीटी इकोनॉमिक्स में हुआ है, बट मैंने अभी लिंक देखा ग्रुप में तो मैं तुरंत एंटर कर गई सर। अच्छा, आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हुआ है? यस सर, यस सर। केवीएस में? यस सर, मैं आपसे आपके ग्रुप से सर जुड़ी हूँ, तो मैंने अभी लिंक देखा तो भाई। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप ये बताओ कि आपसे पहला प्रश्न ये होगा कि आप नवोदय विद्यालय से पढ़ी हो, तो आपने नवोदय का इंटरव्यू दिया था? यस सर, मैंने दिया था। और ये भी केवीएस में भी आपका सिलेक्शन हुआ है? यस सर, केवी में हुआ है। तो आप ये बताओ कि आप नवोदय में जाओगी या केवी में जाओगी? पहला प्रश्न तो ये हो गया। सर यस सर। हाँ, बताओ। सर वो जो मेरा इसके पहले जहाँ मैंने काम किया था नवोदय में सर, वो मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था। सर ये नेचुरल है कि अगर कोई परमानेंट जॉब मिलेगी तो पहले उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो तो सर मैं आपका आपका नेचुरली केवी में जाना चाहूंगी। मान लीजिए नवोदय में भी हो गया, केवी में भी हो गया, फिर? एंड सर कि सर नवोदय में चूंकि मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ, तो मैं वो रेजिडेंशियल स्कूल है, तो इसीलिए मैं अपना मतलब टीचिंग का एक्सपीरियंस मैं केवी में लेना चाहूंगी। केवी में जाना है। जबकि अभी क्योंकि सर ये हम सर। हमारे साथ एक कैंडिडेट पीछे आए थे, जिन्होंने यस ये सर, कहा कि मैं केवी से सेंटिमेंटली जुड़ी हुई, इसलिए मैं यस केवी सर। ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो क्या आप नवोदय हाँ। सेंटिमेंटली नहीं जुड़ी थी? नहीं सर, मैं पहले से जुड़ी थी, लेकिन वहां पे मैंने जब अपना 7 मंथ का जब वर्क किया वहां पे, तो मैंने देखा कि वहां पे एक 24 आवर वर्क बर्डन है, जो कि केवी में नहीं है। और कहीं एक बार अगर टीचर वहां चला जाता है तो थोड़ा सा मतलब मेंटली वो फिर वहाँ मोनोटोनस वर्क हो जाता है सर, वर्क बर्डन वो मैंने फील किया, क्योंकि जितने भी टीचर थे उनका फिर ज्यादा नेचुरल इंटरेस्ट नहीं रहता टीचिंग में। तो वो चीज नहीं है। और केवी इसका में सर। इसका मतलब ये है कि आप जिस संस्थान में काम कर चुकी हैं उसकी आप बुराई कर रही हैं, और जिस संस्थान में जाने वाली उसकी बड़ाई कर रही हैं। तो मैं इससे हम आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या समझें कि आप नहीं सर, कल जाकर आप कहीं और जाएंगी केवी छोड़कर, तो केंद्रीय विद्यालय की बुराई करेंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो मैंने देखा वहां पे सर, जो नेचुरल है सर, मैं वो बता रही हूँ, उसमें बुराई और अच्छाई की कोई बात नहीं है सर। वहां पे ट्रेनिंग भी होती है, जैसे केवी में होती है वहां भी होती है, लेकिन वहां पे जो मैंने टीचर्स का सर माइंडसेट जो पढ़ा मैंने सर, वो मैं बता रही हूँ आपको। टीचर्स का माइंडसेट से क्या लेना देना, आप तो विद्यार्थियों के लिए जा रही हैं। चलिए आरती, ये फंसाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? ओके और ओके सर। आपके उत्तर सर आई सही। विल प्रिपेयर, यस सर, आई विल नहीं प्रिपेयर नहीं डिफरेंट आंसर फॉर दैट। नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपके उत्तर सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहे हैं। अब कहिएगा कि सर बस एक ही रीज़न है कि 24 घंटे की इसमें नौकरी है कि नवोदय विद्यालय में, रेसिडेंशियल है, और मैं मेरा परिवार जो है मैं उसको समय ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी नवोदय विद्यालय में रहने की वजह से। केंद्रीय विद्यालय अगर होता है तो मैं केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ये था कि मैं नौकरी भी करूं, परिवार देखूं और साथ साथ अपने जीवन को ले चलूं। ठीक है, ऐसे आप कुछ कह सकती हैं। सिर्फ इसका एक ही आंसर निकल के आ रहा है ड्रॉबैक में कि 24 घंटे वाले जो है वो रेसिडेंशियल सिस्टम। टीचर्स का माइंडसेट कैसा था, बच्चों का माइंडसेट कैसा था, ये सब नहीं बोलना। ठीक है? ओके सर। बाकी तो फिर ये हो जाएगा कि आप बुराई कर रहे हो या फिर फ्लैटरी कर रहे हो केवीएस में आने के लिए। समझ रहे हो ना? ओके सर, ओके।
तो यही सब बात है। पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले जो सर थे एक्चुअली उन्हीं का आज होना था, तो उनकी तबीयत आज खराब हो गई है, तो मैंने जब मैं आ गया तो मैं टीजीटी एसएसटी का कर दिया। उनकी बात हम करवाएंगे 3-4 दिन में जब कभी वो होते हैं तो। ठीक है। ठीक है सर। इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से दिया, और आपसे इंट्रोडक्शन से आपने हॉबी और स्ट्रेंथ तो बताया नहीं अपने इंट्रोडक्शन में। सर वो एक कंप्लीट फॉर्मेट में सर अभी थोड़ा सा नहीं था, तो वो अभी बता देते हैं सर। हाँ। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ गाइडेड और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहती हूँ। और कमजोरी ये है कि मैं कभी कभी ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाती है, क्योंकि मुझे हर काम को अपने टाइम लिमिट पे काम पूरा करना पसंद है। इसीलिए थोड़ा सा कभी एक्स्ट्रा अपने वर्किंग टाइम से एक्स्ट्रा टाइम लेके भी मैं काम करती हूँ, तो थोड़ा सा वर्कलोड कभी कभी ज्यादा लेना पड़ता है। अच्छा, ये सिखाया है किसी यस ने सर। ये? नो नो सर, सर ऐसा मैं फील करती हूँ कभी कभी नाइट में भी, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ के सर काम चलिए करना ठीक पड़ता है, है, फिर या अब अभी ठीक कैसे पढ़ ठीक रहे हैं। ठीक ठीक यस है। सर। हॉबीज क्या है आपकी? Sir, my hobbies are crafting, cooking, traveling, rangoli making, and wall designing, and glass painting, etc. अरे वाह, तो आप कितनी सारी हॉबीज हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी हो पाएंगी? सर जैसे मैं जानती हूँ कि केवी में हर वीक फन डे होता है, और रेगुलरली को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, तो मैं उन बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है बहुत ज्यादा सिखा सकती हूँ। अच्छा, आपने लास्ट टाइम ट्रेवल कहाँ किया था? सर अभी तो अपनी जॉब की वजह से मुझे, मेरी सर जॉब वहाँ आंध्रा में थी, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट सर, लास्ट एकदम पड़ता है, कोस्टल काकीनाडा। रीजन है। हाँ। हाँ सर, सर उसकी वजह से मुझे हर मंथ, वंस इन अ 2 मंथ सर मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। तो उसके पहले भी सर, जब मैं नवोदय में थी तो मेरा 6 क्लास में टूर गया था दिल्ली के लिए सर, रिपब्लिक डे परेड हुई थी सर, तो वहां से मेरी हॉबी डेवलप हुई ट्रैवल करने की। तो सर काकीनाडा किस लिए फेमस है? ये सर काकीनाडा सर, जो कि ये कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पे फिश फिश के लिए ज्यादा फेमस है सर। और उसके अलावा ओएनजीसी का सर एक प्लांट है वहाँ पे, तो सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, तो आप सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकाल दीजिए। अभी एक विद्यार्थी ने पढ़ाया था, आप इकोनॉमिक्स से हैं भी, तो इसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप बना दीजिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सेक्टर्स फॉर इकोनॉमी। सर सर बच्चों से पूछेंगे कि आप अपने आसपास, अपने घर के आसपास या फिर अपने शहर आप में, बच्चों से गांव पूछिए मत, में। आप एज्यूम करिए कि आप बच्चों के साथ हैं। निकालिए। ओके सर। बच्चों, आपने अपने शहर, गांव या फिर अ, आते जाते रास्ते में लोगों को किसी न किसी एक्टिविटी में या फिर विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करते हुए देखा होगा। अच्छा देखा है। अच्छा, अच्छा बताइए वो कौन कौन से काम करते हैं। अच्छा, वो पेड़ पौधे को पानी देते हैं, जानवर पालते हैं, खेती भी करते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में काम भी करते हैं। अच्छा, अच्छा ये बताइए उसमें से कौन कौन से क्रियाकलापों से वे पैसे कमाते हैं, या फिर वो कौन से क्रियाकलाप है जो प्रकृति से जुड़ी हैं, या फिर कौन से हैं जो फैक्ट्री से जुड़ी हैं, या फिर जिनमें कुछ ज्यादा कुशलता और अ, ज्यादा शिक्षा की या फिर कौशल की जरूरत होती है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है ये जो प्रकृति से संबंधित जो एक्टिविटी होती है उनको क्या बोलते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ आप लोग को, इनको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं। सर ऐसे ही कर देंगे सेकंड एंड फिर थर्ड आपके सेक्टर टॉपिक के का लिए। नाम कैसे निकला? सर जब वो बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे कि ये विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज हैं, तो उनको पहले नाम बताएंगे, फिर सेक्टर बता देंगे कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के 3 जो है क्षेत्रक होते हैं। पहले आप इकोनॉमी बताइए कि क्या है इकोनॉमी, ठीक है, कैसे कैसे पैसे, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, ठीक है। यस सर। आर्थिक गतिविधियों को बताने के बाद आप उनको सेक्टर्स में बांटिएगा, फिर आप उसका टॉपिक लिख दीजिएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके यस बाद सर। क्वेश्चंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे आप आइएगा। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। पोक्सो क्या यस है? सर। सर पॉक्सो, सर
सर ये चिल्ड्रंस के सेक्सुअल हरासमेंट वो से रिलेटेड फुल है। फॉर्म, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म। सर सर सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं है एट प्रेजेंट। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई सर है। याद आ गया सर, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। देखा आपने, गूगल किया अभी? नो नो सर, सर इमीडिएटली मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था तो वो तुरंत सर याद आ गया, इतनी जल्दी सर कब हो नहीं पाएगा। कब आया था ये? सर आई थिंक 2012 या 13 के अराउंड आया था। चलिए ठीक है, इसके प्रोविजंस भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यस सर, यस सर। गुड टच बैड टच क्या है, ये भी थोड़ा सा आप ये जानकारी रखिएगा। यस सर। और पोक्सो हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोशल स्टडीज़ का क्या क्या प्रोविजन है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्या है। ठीक है, ये सब ओके चीज़ें सर। जानकारी रखिएगा। बाकी अच्छी कैंडिडेट आप लग रही हैं, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बस मैं ये कहूँगा कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से लीड करे, तो इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें बताइए जिस पे आप प्रश्न बन सकते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर आप सहजता से दे सकते हैं। ठीक है। और जैसे क्या होता है कई बार कि बायोडाटा में आपने अपना फिल कर दिया, फिर भी आप बताए जा रहे हैं कि मैंने 10वीं 2018 में किया, 12वीं 1857 में किया, तो ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आई हैव डन माई स्कूलिंग, आई हैव डन माई कॉलेज, एंड उसके बाद अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपकी क्वालिटी क्या क्या है, वो बताइए। ठीक है। ओके सर। सबको समझ में आ गया? अच्छा चलो, अभी सबका माइक ऑफ है। एक बार सब लोग अपना, समझ में आया लक्ष्मी? यस सर। Yes, ठीक है। sir. सुधीर, मुझे लगता है आप डेमो नहीं देना चाहते हैं, इसलिए माइक ऑफ नहीं यस on। सर, आ गया समझ। तो आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे या फिर मैं सेशन एंड करूं? यस सर। क्या सेशन एंड करूं उसमें? यस सर। नो सर, आई वांट टू इंट्रोड्यूस। ओके सुधीर, आप अपना परिचय हेलो दीजिए सर, हिंदी में। माय नेम इज सुधीर। आई एम फ्रॉम दिल्ली। I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya Paschim Vihar School, New Delhi. Okay. My highest qualification is Bachelor's in Library Science from Indira Gandhi National Open University, and currently I am pursuing LLB from Maharshi Dayanand University. I have a couple of hobbies, like I love reading books, I like to teach children sometimes, and I like to play badminton sometimes also. And I have a couple of qualities also, like I have good managing skills, I have good communication skills, and I like to interact with different children and have patience to listen them. And many children approach me to help them as they believe I can analyze them better. Also, I am a smart worker and hard worker also. ओके That's सुधीर, all. Thank you, sir. सुधीर आपने लाइब्रेरी साइंस किया, आप टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए दे रहे हो? नहीं सर, लाइब्रेरी साइंस के लिए ही दे रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन आप आगे हो तो कर देते हैं। यस आप सर। सुधीर ये बताओ कि लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने? सर लास्ट बुक मैंने सत्यार्थ प्रकाश है पढ़ी थी, जो स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश में पुरुषों के विवाह की उम्र क्या निश्चित की गई है? सर पुरुषों की जो मिनिमम एज बताई गई है उसमें 27 to 30 के अराउंड बताई गई है। अच्छा, और स्त्रियों के? सॉरी। अगर सत्यार्थ प्रकाश का निचोड़ हम कहें कि आप 5 लाइन में बताएं, तो ये किस विषय पर लिखी गई है? सर ये मुख्यतः जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, उन चीजों के बारे में बताई गई है। उनको कुरीतियों को दूर करने के लिए वेदों की ओर लौट चलो स्वामी दयानंद का नारा था। तो उसमें ये दर्शाया गया है कि हमें कैसे अपने पुराने और जो। और कौन सी किताब पढ़ी सुधीर आपने? सर अभी हाल में ही पढ़ी है, उससे पहले पढ़ी थी जब स्कूल टाइम पे था तो गोदान पढ़ी थी प्रेमचंद जी की। गोदान के पात्रों के नाम याद है आपको? नहीं सर, चलिए काफी ठीक टाइम है। हो गया तो उसमें। ई ग्रंथालया के बारे में आपको पता है? सर ई ग्रंथालय के बारे में ये ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, बट ये पता है कि इसमें इसका 4th एडिशन हम अभी फॉलो कर रहे हैं।
और केंद्रीय विद्यालय के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें एक विद्यालय को ही फॉलो किया जाता है। एंड सुधीर ठीक है सुधीर, हम आपका लाइब्रेरी वाले सर से रूबरू करवाएंगे बहुत जल्द। अभी तो रिजल्ट आने दीजिए उसका, लाइब्रेरी साइंस का। कितना कट ऑफ ओके आपका, कितना मार्क्स गया है? सर 133 है मेरे। अच्छा, रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। ठीक ओके है, ओके सर। ठीक है साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं जो सोशल स्टडीज और पीजीटी इकोनॉमिक्स जो भी देने जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड। आप अपनी तैयारी को ब्रशअप करिए, खूब boost करिए, जो भी समय मिल रहा है उसमें अपने सब्जेक्ट को और इनरिच करिए। और जो भी सलाह मशवरा हो मुझसे, मैं जो भी आपकी मदद कर सकता हूं मैं करूंगा, इसकी मैं कोशिश करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, sir.